गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। Yeah. Gurudev, I received my personal mantra today. If mantras are the seeds, then what is the tree? Life. Next. Gurudev, is bliss a feeling? If not, how do you experience something that is not a feeling? Why you want to experience something that is not a feeling? Feeling means that you feel, no. Feeling is experience, isn't it? At the moment when you are feeling it, then it translates into memory if it's very strong. Then you call that experience, isn't it? Gurudev, the mantra Pushpam describes the moon as the flower of water. Further paragraphs describe water as the support for fire, air, stars, etc. And the one who knows the support of water is endowed with its support. Could you please speak No, no, about no, this no, 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 most no, no, no. intriguing chant? Mantra Pushpa, it says, Apa. Apa means not just only water, that which is very dear to you. That Apa also means love. Apa also means an energy by which you experience, you express love. And it says that where is that stays in the heart. And where does the heart stays? In the self. And one who knows that this entire universe is with that vibration which is called love, which is the dear one, which is endearing, then that person who knows, he knows everything. He knows the Veda. One who is immersed in love. That's a very beautiful, very close ones are called aptas, apta bandhu. Apta means what? My close one. Apa, water is also called apa. So a word has many meanings. Water is one. And water is life. Without water there can't be life. And so, water is synonymous to love. That is what it is. One who blossom in love, when they know that the connection of the whole universe, the macrocosm and the microcosm are so intimately connected with one energy that is love, there is nothing else other than that. One who knows this, they know everything. That's what it says. Gurudev, how to stop getting carried away despite knowing it is not the right way? You get carried away by two things. One is out of habit. Second is out of temptation. If you want to add third one, you say out of ignorance. Now you have to find solution for all three. Okay, habits you can get over by taking a vow, short-term vows. No? I have spoken about how to get over the habits many times. Habits. Second, temptation. When you go for greater love,
greater joy, temptation will fall behind. Sadhana will help in that. And third thing is ignorance. And this very knowledge, a knowledge of life in context with the whole universe, the whole life, makes total shift. Yeah, next. Gurudev, how do we know if we have attained siddhi in any mantra japa? Are there any signs? Pratyaksham kim praman. When you see it, it manifests in reality. Why do you need a proof? You don't need a proof for the sun, whether sun is not there or not. Isn't it? So like that, siddhi means that gives you your desired result, and then you don't need a proof for it. Done? गुरुदेव, ईश्वर के पंच कृत्यों में तिरोभाव का अर्थ शिव महापुराण में प्राणों का उत्क्रमण बताया गया है। यह समझ में नहीं आया, कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। तिरोभाव माने चिप जाना, ओझिल हो जाना, आंखों से ओझिल हो जाना, इतना ही है। 5 कृत्य है ईश्वर के। क्या है? सृष्टि करना, स्थिति उसका पालन करना, फिर उसका संहार करना, फिर तिरोभाव माने खुद को छिपा लेना। काम सब करके छिपा जाए, आप छिप जाते हो, पता नहीं चलता लोगों को किसने किया, तो ये तिरोभाव है। फिर अनुग्रह। देखो सारा संसार में इतना इंटेलिजेंस है, मर तो वो इंटेलिजेंस छिपी हुई है। कहाँ दिखती है? दिखती है क्या? नहीं दिखती है। करता दिखता नहीं है, छिपा हुआ है। ये ईश्वर की आंख में चोली है, खेलना पसंद आता है। कुछ करके छिप जाना, बच्चे भी करते ना, कुछ करके वहाँ इधर उधर। अब देखो पर्दे के नीचे ऐसे छिप गए, कहाँ बेबी कहाँ है, यहाँ हूँ। खेल है, अच्छा लगता है बच्चों को छिप जाना। कभी मुंह छिपा लेते हैं, कभी पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं, कभी मंच के नीचे चले जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं। वो ईश्वर का ही एक लक्षण है, गुण है। इसीलिए ईश्वर नजर नहीं आता है कि कोई और अनुभव में भी नहीं आता। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ईश्वर ने किया, ऐसा लगता हम ही सब कर रहे हैं। कर तो ईश्वर कर रहा है, मगर तुम्हें भ्रम हो जाता है मैं कर रहा हूँ, तो इसको तिरोभाव कहते हैं। फिर अनुग्रह, 5वां है अनुग्रह करना। जब प्रार्थना करते हैं तो आपको ब्लेसिंग दे देते, अनुग्रह होता है। कृपा कर देना, अनुग्रह कर देना, ये 5 ईश्वर की कृत्य। पूज्य गुरुदेव, वेद पुराणों का ज्ञान अनंत है, जिसे समझना मनुष्य के बस में नहीं, पर मैं उस ज्ञान को समझना चाहता हूँ, उसे अनुभव करना चाहता हूँ। कृपया इस असंभव कार्य को संभव करने का मार्ग बताएं। पहले ये असंभव समझ लिया, फिर संभव कैसे करोगे भाई? थोड़ा संभावना तो रखो, कर सकता हूँ, फिर तो करोगे। अच्छा, क्या करना है? अपने आप में विश्राम करो। एक चम्मच का पानी सागर को नहीं समझ सकता। सागर को समझने के लिए सागर में घुल मिल जाना पड़ता है, विलीन हो जाना पड़ता है। यही गुरुदेव, 3 तरह के आकाश के बारे में कृपया बताएं और चिद आकाश तक कैसे पहुंचे। हाँ, 3 आकाश तो है ही। भूताकाश जो दिखता है, ये भूताकाश है, और चित्ताकाश है
जहाँ पर विचार आते हैं, भावनाएं उठती है, मन ही तो चित्ताकाश है। आप जहाँ सपने उठते हैं, सपने आते हैं, कुछ दिखते हैं, सब होता है, विस्मरण होता है, ये सब चित्ताकाश है। चिदाकाश में सिर्फ आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है। ऐसा लगता है मैं खाली हो गया, कुछ नहीं। जो ध्यान में आपको अनुभव में आता है, जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, फिर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। फिर कुछ तरंग अनुभव में आता है, यहाँ मस्त लगता है। तो जब भी हम मस्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, समझ लेना ये चिदाकाश। गुरुदेव, आस्तिक और नास्तिक दोनों मस्त रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति वाले लोग जूझते हैं। वे अपनी स्थिति से कैसे बाहर निकलें? ठीक है, नास्तिक बन जाओ। आस्तिक बनना मुश्किल है, नास्तिक बनना आसान है। नास्तिक बन के देखो तो, नास्तिक बन जाओ कुछ दिन के लिए, देखो होता है कि नहीं होता है तो आस्तिक मान ही लो अपने आप को। हाँ, मानना ही पड़ेगा, फिर क्या करोगे? गुरुदेव, जीवन में प्यार की कमी महसूस होती है। जिससे भी प्यार करती हूँ वो दूर चला जाता है। इस कमी को कैसे दूर करूं? वो बहुत अच्छा हो गया। तो प्यार कर नहीं रहे, प्यार की आकांक्षा रखी हुई है। प्यार करने वाली चीज नहीं होती, प्यार होने वाली चीज होती है। हम प्यार के पुतले बन के रहें जीवन में, जो हमारे साथ पास आते उनको प्रेम का अनुभूति होने लगती है। हम संबंधों को प्रेम समझते हैं और उसमें फंस जाते हैं, उसमें दुख ही दुख मिलता है भाई। तो प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम हमारा अस्तित्व है, इतना समझ लो। तब कोई तुमको दुखी नहीं कर सकेगा। हमारा अस्तित्व प्रेम। जैसे एक ज्योति ये नहीं सोचेगी मैं कहाँ तक अपना प्रकाश डाल रही हूँ, डालूंगा नहीं। ज्योति अपना प्रकट है, उससे जहाँ प्रकाश जहाँ जितने दूर मिले उनको उतना लाभ है। ऐसे सुगंध दुखी नहीं होगा, कह रहे इनके नाक में नहीं जा पा रहा हूँ, इनको सर्दी लग गया। अरे वो अनुभव नहीं कर पा रहे आपके सुगंध को, उनके नाक में नाक बंद है तो दुखी थोड़ी ना हो जाएगी फूल। ये बात समझो, ठीक है ना? नहीं तो नहीं सही। सुगंध का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्रेम का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है, तो वो दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है। वो तो नाक बंद है, उनको सर्दी हो गया। यही समझना पड़ेगा। ऐसे तुम अपने आप में विश्राम करो, प्रसन्न रहो। अब देखो, फिर किसी को प्रभावित करने की चेष्टा करना ही गलत है। हम ये सोचें किसी को हम प्रभावित कर लेते हैं, वो बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, गंडमूल नक्षत्र में हुए जन्म को अशुभ क्यों मानते हैं? देखिए, 27 नक्षत्रों में से हर नक्षत्र का कुछ न कुछ ऐसा है। हाँ, मूला नक्षत्र में पैदा हो तो उसके लिए कुछ है, समस्या है। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हो तो भी कुछ समस्या है। धनिष्ठा में पैदा हो तो कहते हैं इसमें भी कुछ समस्या है भाई। ज्येष्ठा में कहते हो जेठ को घातक है, इसमें पैदा हो तो इनको, रोहिणी में हो जाए तो मामा का घातक है। कौन सा नक्षत्र है जिसमें कुछ भी समस्या नहीं, बताओ तो? कृतिका में पैदा हो तो अग्नि नक्षत्र है तो आगे। अरे हर नक्षत्र के एक सकारात्मकता भी, एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है।
जैसे बिजली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से तो चलता है ना भाई, ऐसे होता है। तो इसलिए सब पचड़ों में पड़ो नहीं, हर चीज में तुम आध्यात्म पथ में आ गए हो, मान लेना तुम्हारा भाग्य खुल गया, भाग्य खुल गया। बस आगे बढ़ते जाओ, साधना करते जाओ, प्रसन्न रहो, और क्या, ठीक है ना। गुरुदेव, एडवांस कोर्स क्या है? इस कोर्स को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसे बार बार करने के पीछे क्या सीक्रेट छुपा है? तो इसका मतलब तुमने किया तो होगा, अच्छा तो लग रहा है नहीं? कई सालों की साधना, महीनों की साधना, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में तुम बैठ के अनुभव कर सकते हो। ये गहराई में जा पाओगे, अपने आप को प्रकृति के साथ एक लय में लेके आने की ये एक विधान है। तो देखिए, कोई भी साधक लंबा समय के लिए अपना अभ्यास करना पड़ता है, पर अभी ना आपके पास समय है, ना गुरु के पास इतना आपके लिए समय है, ना आपको देने के लिए समय नहीं, आपको सब कुछ जल्दी चाहिए। गुरु के पास तो समय है ही, मगर तुम्हारा इतना समय नहीं है ना इन सब के लिए देने के लिए। इसलिए इसको ऐसे युग के हिसाब से, युग के अनुकूल प्रकृति आपको सब कुछ दे देती है। 10 घंटे बैठ के सांस को देखो, फिर शरीर में संवेदना होने लगती, या 10 मिनट क्रिया कर लो, सुदर्शन क्रिया कर लो, संवेदना तुरंत ही होने लगता है। वो तो 10-20 दिन मौन रह के जो तुम पाने की चेष्टा करोगे, वो तो 3 दिन के मौन में तुमको मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग तो हाई टेक के एज में है ना भाई, क्या टेक्नोलॉजी के हैं, T20 के एज में, तो हमें हर चीज तुरंत चाहिए। तो साधना की प्रक्रिया में भी ऐसी प्रक्रिया निखर आता है, वो प्रकृति देती, ईश्वर ही देता है ऐसे। गुरुदेव, दूसरों की एनर्जी से स्वयं को प्रभावित होने से कैसे बचाएं? क्यों, दूसरों का अच्छी एनर्जी हो तो तुम प्रभावित नहीं होना चाहते हो क्या? जब दूसरों के जो सात्विक तरंगों से तुम प्रभावित होते ही हो, ऐसे किसी और के नकारात्मक तरंग से भी प्रभावित हो जाओगे। इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या बात है? तुम प्रभावित करो सबको, थोड़ा बहुत प्रभाव बढ़ भी जाए तो क्या हर्ज है, वो निकल जाएगा सब। कोई प्रभाव तो स्वभाव के सामने टिकता नहीं है। अपने स्वभाव में तुम बने रहोगे तो प्रभाव सब अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है। ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಅದಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಗುರುದೇವ್, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಗುರುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅನ್ನದಿಂದ ಆನಂದದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು, ಹೀಗೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆಯೋ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು
ಕನಸು ಯಾವುದು ನೆನಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆತ್ಮೀಯರಿಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನದು? ಇಂಟಿಮೇಟ್ ನೋಟ್ ಟು ದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸೀಕರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಕಾಯ್ದಿರುವುದೇ ತಾಳ್ಮೆ. ನಮಗೆ ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲದೆ, ಕಾಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಒಂಥರ ಚಟಪಡ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಯೋದು ಕಲಿತ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट हम लोग अभी ध्यान करते हैं. उसके बाद फिर कीर्तन शुरू करते. आराम से बैठ जाए. लेट्स सिट कंफर्टेबली, इजीली. Spine erect, body relaxed. Let's do Ram Dhyan. Eyes closed first. 3 times Om. Let's take a deep breath in. गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. एक और गहरी सांस लीजिए. Another deep breath in. One more deep breath. Let's keep our attention in our navel region. ನಾಭಿ के पास अपना ध्यान रखते हैं. ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. Keep your attention near navel and the solar plexus. Now from the belly we start saying Ram. ನಾಭಿಯಿಂದ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. नाभि से राम नाम अभी हम करते जाएंगे.
सांस लीजिए। Ram 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 Ram.
Om Shanti Shanti Shanti. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़िए. With a big smile, take a deep breath in. And as you breathe out, you may gently open your eyes. अच्छा लगा? मन लग गया? Is good? हरि नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण
नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा